Hello friends, today in this video I am going to give you some IELTS reading tips. These tips will help you in cracking the IELTS reading exam. There are many tips which can help you in getting good band scores in the IELTS, but the main thing is you have to pay attention to those tips. Here I am with some tips of reading that can help you getting good bands in the reading section, because some students find reading very boring and they can't read for 1 hour. So these tips will help you in getting good bands in IELTS reading section. So the first one is read instructions carefully. This is very important tip that you have to read the instructions carefully. If you will not read the instruction, you will not get what the examiner is going to say in the test. So many easy marks are lost by good IELTS candidates because they fail to read the instructions properly. This is especially true in the reading and listening test because they give very specific instructions. So अगर आप उन instructions को follow नहीं करते हैं, exactly follow नहीं करते, तो आप क्वेश्चन को सही समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में आपको बताना क्या है और आप गलत आंसर दे देंगे, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स लूज़ कर सकते हैं. एज एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें तो हमें इंस्ट्रक्शंस जैसे उसमें बता सकते हैं कि हमें 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर लिखना है. इसका मतलब है हम एक वन वर्ड भी लिख सकते हैं, 1 वर्ड एंड 1 नंबर वी कैन राइट. हम 2 वर्ड्स भी लिख सकते हैं और 2 वर्ड्स और अ नंबर भी लिख सकते हैं. हम एज एग्ज़ाम्पल आई कैन राइट फॉर यू, अगर हमें वहाँ पे लिखना है 32 कार्स, उसमें हमें 2 वर्ड्स और अ नंबर लिखना है. तो हम जैसे 32 ये 2 वर्ड्स हैं और 32 ये 1 नंबर है. यहाँ पे अगर हमें 32 कार्स में 3 वर्ड्स लिखने हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 32 कार्स फुल इन द इंग्लिश. एंड अगर हमें वहाँ पे 1 नंबर और 1 वर्ड लिखना है देन वी कैन राइट 32 कार्स वेयर वी कैन राइट 1 वर्ड and 1 number and 1 word. This will be the right answer, but if you will write like this, the answer will be totally wrong. So you have to understand the instructions first, that what we have to give in the answer. Exact answer we will give only when we will read the instructions very carefully. Instructions are given to guide us, so if you will not pay attention on the instructions, how you can answer the question? The one word means just one word. We should therefore be very careful with articles like a and an. If in the answer they ask for earthquake, like for example the test might say an earthquake, but if it asks for one word, simply write only earthquake. Don't write an earthquake. There will be 2 words, so the answer could be wrong. You have to give only specific 1 word answer, then you don't need to write an before earthquake. You can only write earthquake. So you have to write only 1 word if they ask for 1 word. You don't have to add the article with that. So this was the first point, that you have to pay attention to the instructions. The second one is don't try to understand every word. This is also very important tip because you can save time if you will not try to understand every word. Even the native speakers sometimes don't understand the every word. So अगर आपको अपना टाइम सेव करना है और पेपर भी आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, तो आपको हर एक वर्ड को समझने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अगर वो टेस्ट में सभी वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे तो वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सभी वर्ड्स के मीनिंग को समझने लग जाएंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि वो अपना आंसर दे सकें और अपना टेस्ट समय पर कंप्लीट कर सकें. अगर उनको प्रैक्टिस के दौरान डिक्शनरी में से वर्ड्स देखने के लिए बताए जाएँ तो ये एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि अगर उनकी टेस्ट से पहले ही बहुत सारी वोकेबलरी उनके पास है, उनको नॉलेज है, सो टेस्ट में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं.
पर अगर आपको टेस्ट में वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको उसका आंसर भी देना है, लाइक यू हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, then you can do one thing. You can look at the words and sentences around it for clues so to its meaning, or you can move and forget about it. You don't have to understand the meaning of every word. अगर आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको वहीं पे छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और जब आपने एंड पे अपना सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है तो आप दोबारा उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके पास अगला पेपर करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो चाहे तो आपके पास अगर अच्छी वोकैबलरी है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी वोकैबलरी नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन को वहीं पे पेंडिंग छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें, जिसकी वजह से आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको हो जाएगा, और समटाइम हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में से ही क्लू मिल सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज़ प्रैक्टिस रीडिंग स्किल। अगर हमारा रीडिंग का टेस्ट है तो हमें रीडिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद आइल्स रीडिंग टेस्ट, आइल्स रीडिंग टिप्स एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस क्वेश्चंस. So it is also important to learn from your mistake. A student just practice IELTS exam are missing out on a good opportunity to improve their journal reading skills. अगर रीडिंग आपकी हॉबी भी है और आप डेली कुछ थोड़ा थोड़ा रीड करते हैं तो ये आपकी रीडिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो अगर आपको रीडिंग एग्ज़ाम अच्छे से करना है तो आपको अपनी हॉबी बनानी होगी कि आप डेली रीडिंग करें। उसके लिए आपको इंटरनेट पे भी हेल्प मिल सकती है, मैगज़ीन्स में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, उन पे न्यूज़पेपर में से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश डाटा रीड करेंगे तो आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए टेस्ट में बेनिफिशियल होगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग स्किल्स बिफोर यू गिव द IELTS एग्ज़ाम. Next is learn vocabulary. Every language without vocabulary would be like you can't understand what you have to say if you don't have a vocabulary. vocabulary हर एक लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छी vocabulary है तो आप अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से नहीं भी आती तो भी आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। सो एक तरह से ये वोकेबलरी टेस्ट भी है, आपका आइल्स टेस्ट है जो। सो आपको अपनी वोकेबलरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे आप अच्छे बैंड्स ले सकते हैं अपने आइल्स टेस्ट में। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। यू जस्ट हैव टू मेक अ वोकेबलरी नोटबुक। आप जो भी नए वर्ड्स आपको लगता है कि आपको ये वर्ड याद रखना है उसे आप एक नोटबुक पे लिख सकते हैं और साथ में आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोलोकेशंस, फॉर्म्स, एग्जांपल्स, उसकी प्रोनाउंसिएशन एंड उसके साथ आप उस वर्ड के रिलेटेड पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सभी चीज़ें उसके साथ नहीं लिखनी है तो आप जस्ट एक चीज़ लिख सकते हैं जिसके साथ आपको ये याद रहेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। हम सबका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है, सो आप उस आइडिया के साथ वर्क कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपको ये मालूम चल सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। बट अगर आपने जस्ट एक डायरी और नोटबुक रेडी कर ली है वोकेबलरी की, बट आप उसको रीड नहीं करते हैं तो ये बहुत ही यूज़लेस होगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको उस डायरी को और उस नोटबुक को जिस पे भी आपने ये डाटा राइट डाउन किया है उसको आप वीक में एक बार ज़रूर पढ़ें और अपने माइंड में उसे रिपीट करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको बहुत सारे वोकेबलरी न्यू वर्ड्स भी मालूम चल जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प देंगे। द नेक्स्ट इज़ कंप्लीट ऑन टाइम। टाइम बहुत ही क्रूशियल है आइल्स रीडिंग एग्ज़ाम में। आपको सिर्फ 1 घंटा ही मिलेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो आपके पास 40 क्वेश्चंस है और कई टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप 40 क्वेश्चंस हैं तो आप उनको टाइम को डिवाइड करें, जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं उन पे ज़्यादा टाइम दें
और पहले उन्हें करें, लेकिन ये आइडिया सही नहीं है। स्टूडेंट्स को जो आंसर्स इजी लगते हैं वो पहले उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम डिफ़िकल्ट पे स्पेंड करेंगे तो शायद एंड में उनके पास टाइम नहीं बचेगा अपने इजी क्वेश्चंस को लिखने के लिए। सो पहले आप सभी उन क्वेश्चंस के आंसर दें जो आपको पता है और आप उनके लिए श्योर हैं। एंड में आप उन क्वेश्चंस को टाइम दें जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कि आपको इनका आंसर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके लिए ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं अगर आपने पहले ही अपने इजी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। और आपको टेस्ट में टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप सिर्फ 1 घंटा ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं आपको मिल सकता अपना एग्ज़ाम करने के लिए। सो आपको उससे पहले प्रैक्टिस भी करनी होगी कि आप 1 घंटे में अपना टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जब आप आइल्स ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आपने 1 घंटे में टेस्ट कैसे करना है। सो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वैसे ही आप इस टेस्ट को अच्छे से कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की टिप्स थी, जिसकी हेल्प से आप आइल्स रीडिंग टेस्ट को अच्छे से कर सकते हैं। आई होप you like the tips and you will get the good bands if you will follow these tips. So thank you and stay tuned for more videos like this.